میرے ساتھ نکالیے گا، ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھنے کی شہادت حاصل کروں گا، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ لکھا ہے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، کس کے بچوں؟ تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق حل لاؤ۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ اسے کبھی اس ورس کو جو ہم نے 7ویں ورس پڑھی ہے، اسے کبھی اکیلے میں پڑھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے کتنے غصے کے ساتھ ارم گال کٹی سی۔ سانپ کے بچوں ایک گالی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک ایگزامپل، یہ نہ کہتے پادری اسٹیج پہ لوگ گالا کرتے، ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا کھوتے کا پتر، تو یسوع نے یہاں کیا کہا؟ سانپ کے بچوں۔ کیوں یسوع اتنا قہر میں ہے؟ یسوع کا قہر یا غضب جو ہے اتنا بلند کیوں ہوا کہ یسوع کو ان فریسیوں کو یہ کہنا پڑا کہ تم سانپ کے بچے ہو؟ ریزن 8ویں آیت میں لکھا ہے، توبہ کے موافق۔ یہ جو فقیہ اور فریسی ہیں عبادتیں ٹائم پر کرتے ہیں، ہیکل میں ہدیے ٹائم پر لے آتے ہیں، لیکن اندروں ٹھیک نہیں ہے۔ بعض کا کہنا پہنا ہے جی میں بڑا راست باز ہوں، کہنے سے نہیں ہوتے۔ آپ کے کردار یا آپ کے کام ثابت کر دے باقی راست باز ہے۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں بھئی میں تو خدا سے بہت ڈرتا ہوں، کہنے نے سنیا ہوئے گا، کیا وہ لوگ ڈرتے ہیں خدا سے؟ کہنے سے ڈر نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ڈر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا سانپ کے بچوں، کسی شخص کو یہ کہنا کہ تو سانپ کا بچہ ہے، یہ بہت بڑا جھگڑا ہے، یہ عام جھگڑا نہیں۔ کسی نے سانپ کا بچہ کہنا یہ عام جھگڑا نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ فقیہ فریسی جو صدوقی ہیں، جو دوسری موت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب جنت نہیں ہے، وہ بھی بپتسمہ لینے کے لیے آئے، کسی نے بتا دیا کہ بپتسمہ لے لو تو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا تمہیں کس نے جتا دیا؟ تم اپنے جو پھل ہیں ان کو کیا کرو؟ بہتر کرو۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب سارے فقیہ فریسی جو یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، یہ ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں، لیکن ان کا چال چلن ابراہیم کی طرح کا نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کی طرح راست باز یا ایماندار نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، اس سے تم ایماندار یا راست باز نہیں ٹھہر سکتے، لہذا بس تم توبہ کے معافی کیا کرو؟ پھل لاؤ۔ اس پھل کا بڑا ہی تعلق ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ پھل کا ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن ہے، بہت زیادہ تعلق ہے۔ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، میں تم کو توبہ کے لیے 10ویں آیت، اور اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی بڑی خوبصورت شادی کی ہے،
बहुत ज्यादा खर्चा किया है और ये खुदा के हुजूर में बहुत अच्छा फल है। क्या आप इस बात को समझते हैं कि फल ये है? क्या आप इस बात को समझते हैं कि मुआशरे में आपने बहुत से गरीबों को खाना खिला दिया तो ये आपका अच्छा फल है? बात हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से बड़े पारसा बनने की कोशिश करने हैं, हम गरीबों को पैसे बांटना शुरू कर देते हैं, रोटियां खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते। क्या अगर हम खुदा से दूर होकर गरीबों को रोटियां देना शुरू करेंगे, भूखों को रोटी खिलाना शुरू करेंगे खुदा से हटकर, तो क्या हमारा फल खुदा को पसंद आएगा? ऐसा है वे। अब खुदा फुल गजबनाक है, यीशु मसीह फुल गुस्से में कह रहा है, अब दरख्त की जड़ पर क्या है? कुल्हाड़ा रखा हुआ है, तैयारी है, मैं काट डालूंगा अगर तू मेरे कलाम पर अमल नहीं करेगा। आगे हम एक और हवाला देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती की ही इंजील है, 7वां बाब है और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। हर एक अच्छा दरख्त। अब आप कितने समझते हैं कि यीशु मसीह ये दरख्तों के बारे में कलाम कर रहा है, इंसानों के बारे में नहीं कर रहा? याद रखें, बाइबल में जिस किसी चीज को तशबीह दी गई है ना, ये तरबियत किसके लिए? इंसानों के लिए। ये दरख्त कौन है? इंसान है। बाइबल में मैं अक्सर कहता हूं, दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने किन्ना को पारसाए, किन्ना को रास्तबाज, किन्ना को दुआ होए। जे काम चंगे ना हो तो दुआओं की करनी है। आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट लोगों की क्या करेगी अगर आपके काम अच्छे नहीं है? आप चोरी करके अगर गरीबों की हेल्प कर देते हैं तो क्या आप रास्तबाज हैं? आप किसी का ना हक खाकर किसी की हेल्प कर देते हैं, क्या आप रास्तबाज हैं? लिखा है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। ये कह कौन रहा है वैसे? कौन कह रहा है? ये खुदावंद यीशु मसीह की जुबान के अल्फाज है। और अल्फाज क्या है? अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। आगे क्या लिखा है? बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या करोगे? उनके फलों से उनको पहचान लोगे। किन्ना को पारसाए, किन्ना को दुआ गोए, किन्ना को रास्तबाज है। बाइबल फरमाती है, मुकद्दस यूहन्ना जो यूहन्ना अस्तबागी है, बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना है, इसको या इसकी गर्दन को इसके धड़ से अलग इसलिए किया गया कि ये सच्चाई पर खड़ा रहा था और इसे कई ऑफरें आई होंगी, हम तुझे बख्श देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं बादशाह, तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है, ये सरासर गुनाह है। उसने कहा तू इस बात से फिर जाने तुझे कत्ल कर डाले, कि ना मैं कत्ल होने नहीं तैयार है, लेकिन सच्चाई तो हटना नहीं फिरना सच्चाई तो। ये होया ना दरख्त का फल। कर दे कत्ल करने के नहीं करना, एक नजर आ गया तो झूठा है, तू गुनहगार है, मैं क्यों पीछे हटूं? वजह पतरस का क्या किया गया, यूहन्ना का क्या किया गया? सारे कलम कर दिया गया। किस वजह से? कहता मैं नहीं हटूंगा, मेरा भाई जो है, आपका भाई जो है वो गलत है, आप गुनहगार हो और सरापाए गुनाह है, आप गुनहगार हो और आप जहन्नुम में जाओगे। जहन्नम को गुस्सा आ गया, उसने कहा इसका सर कलम कर दिया जाए, इसका सर काट दिया जाए। लेकिन की होया रास्तबाज जेड़ा इसका फल कायम रहा है वो हटिया इस गल तो, वो इस सच्चाई से हटा,
वो अपनी सच्चाई पर कायम रहा। होया कि अंजाम क्या निकला? लिखा है जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और लोगों ने यूहन्ना को कब्र में से जिंदा निकलते हुए देखा। अब मत्ती की इंजील के 27वें बाब को पढ़े, वहां पर लिखा है कि बथेरे मुर्दे निकले और तारीख की किताबों की स्टडी करे, लोगों ने अपनी आंखों से यूहन्ना को देखा, उनका इसका तो सर कलम कुछ दिन पहले हुआ है, इसका तो सर इसके धड़ से अलग कर दिया गया था, हम अपनी आंखों से यूहन्ना को उसकी कब्र से निकलते हुए देख रहे हैं। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। मैं कही रहा हूं, मैं कभी 2 नंबर काम नहीं किया, तुम मान लोगे, शायद तुसी मान लो। खुदा हमारे दिलों को जानता है। हम कहें मैंने जी कभी झूठ नहीं बोला, आप मान जाए, लेकिन खुदा कहता है इंसान मेरे हुजूर खुली कब्र की मानिंद है। मुकद्दस दाऊद कहता है खुदा तू मेरे ख्याल दूर ही से जान लेता है। कहां से? जहां से मेरे ख्यालों का आगाज होता है, मैं अभी सोचना है, मैं ये सोचता भी नहीं, तू सोचन तो पहलू जानना है, काम की करना है या गल की करनी है। मुकद्दस दाऊद ये कहता है। फिर आगे हम देखते हैं, बस उनके फलों से तुमने पहचान लोगे। एक और हवाला मेरे साथ निकालिएगा, मत्ती ही की इंजील 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी। अच्छा दरख्त अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। आगे, ऐ सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो। खुदा के हुजूर हमारी हकीकत क्या है? ऐ सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? क्यों तुम अपनी जुबान से रास्तबाज बने हुए हो? रास्तबाजी देव ना कोई नंगदा है कि यह बंदा बड़ा रास्तबाज। हम कह रहे हमने कभी 2 नंबर काम नहीं किया, लेकिन खुदा कहता है ऐ सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है मुंह से आता है। कहां से आता है? मुंह से आता है। किथे भरिया? किथे वे दिल च। बाजता तो ना घर दे विच बाबा सही कहदी बर्दाश्त करते रहने वो बर्दाश्त बिल्कुल मुक जाती है ना, आखिर फिर वो बाहर निकलो, फिर वो झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेती है। और यहां पर खुदा ने कहा जो अच्छा, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। इसका मतलब हमारा जो फल है इसका ताल्लुक हमारे दिल से है। कहां से है? दिल से है। आए हम एक और हवाला पिछले सेशन वाला देखते हैं। होशिया की किताब निकालिएगा, उसका बाब नंबर 10 आयत नंबर 13 पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है तुमने शरारत का हल चलाया। कौन सा? शरारत का हल चलाया और बदकिरदारी की फसल काटी और झूठ का फल खाया। कौन सा फल खाया? झूठ का। हमारा आगाज कहां से हुआ? आगाज हल तो ही ना बीज बोलने गया। आगाज जो है ये हल से ही होता है। तो खुदा का बंदा यहां पर कहता है कि जनाब तुमने आगाज ही जो है वो शरारत से किया है, तुम्हारा आगाज ही शरारत से है। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है जो कुछ दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। बात का जरा देश पर ही नहीं कर दे अई होर अपने दिलों कर कह रहे हैं मुंह चो मैं बहुत रास्तबाज है, मैं तो बड़ा चंगा, मैं तो सुबह इंज करना दुआवा करना। लेकिन खुदा यहाँ कहता है जो कुछ दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। और दिल में क्या भरा है? तुमने शरारत का हल चलाया और बदकिरदारी की फसल काटी और झूठ का फल खाया। आइए एक और हवाला देखते हैं, मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से अपनी हदायत के लिए एक और हवाला देखते हैं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब
आयत नंबर 24, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील का रुख चेंज किया, और रुख क्या चेंज किया है? अब पौलुस रसूल, हम नेक्स्ट सेशन में ये सीखेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसे तरतीबवार 2-2 घंटे का सेमिनार बनाकर बयान कर सकें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इसलिए इसे बिल्कुल महदूद तौर पर बयान कर रहे हैं, हमने सेशन बनाए हुए हैं ताकि हम खुदा के कलाम को लायक तौर पर सीख सकें। यहाँ पर पौलुस रसूल अपने खत के अंदर कहता है कि जब हम बपतिस्मा के लिए पानी के अंदर जाते हैं तो क्या होते हैं? हम मर जाते हैं। यानी हमारी पहली इंसानियत जो हमारे किरदार को गंदा करती थी, या जो फल हमें पहले थे वो हम पर उंगलियां उठवाते थे, या हमें गुनहगार या मुआशरे में उस किरदार के सबब से इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जब तक दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता। याद रखें, हमें अपने फल को बेहतर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह में नए तौर पर पैदा होने की जरूरत है। हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है ताकि हमारा फल क्या हो? बहुत सा फल लाए। हमारे किरदार के सबब से लोग खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। हमारे कहने से नहीं बल्कि हमारे किरदार को देखे लोग, हमारे इल्फाजों को देखे लोग, हमारे चाल चलन को देखे, ताकि हमारा मर के जिंदा होना बहुत सा क्या करे? फल पैदा करे। लिखा है लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। याद रखें, अगर आज तक आप कहने से, अपने कहने से रास्तबाज हैं तो इस जहालत को अपने पास से उतार कर फेंक दे। आप अपने आप को कलाम के आइन के मुताबिक जरा चेक करें कि आप जो अपनी जुबान से कहते हैं वो है या नहीं है। आप अपने आप को परखें खुदा के कलाम के मुताबिक, और अगर आप नहीं हैं ऐसे तो फिर खुदाबंद यीशु के कलाम को पढ़े, ये आपकी हिदायत करेगा और आपको बताएगा। अब तू नहीं कहेगा मैं रास्तबाज हूं, अब तेरा चाल चलन देखकर लोग कहेंगे कि ये यीशु का बंदा है। खुदावंद यीशु इसी कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। जोरदार